What is electric potential energy and electric potential work? Before going to the electric potential energy and electric potential, we will first discuss what are the conservative forces and what is the conservative field. As you told कि आपके पास कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड होती है जिसमें वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, या फिर आप कह सकते हैं कि वर्क डन इन अ क्लोज लूप इज जीरो. इसी तरह से कंजर्वेटिव फोर्स कैन बी डिफाइंड एज अ कंजर्वेटिव फोर्स गिव्स बैक द वर्क दैट हैज बीन डन अगेंस्ट इट. When you do some work against the gravitational field, you take some object from the ground and put it at some height. That work done is stored in the form of the potential energy. If we move a charge against the electric field, that work done will be stored in the form of electric potential energy. हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ डिफाइन करते हैं फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस. जैसे जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो वी विल कम टू नो दैट कि मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट अ कंजर्वेटिव फील्ड. Magnetic field is not a conservative field. The work done in the magnetic field is dependent on the path followed. उसके लिए फिर हम magnetic potential energy define नहीं कर सकते. But in the electric field, as the work done is independent of the path followed, so we can electric potential energy for the electric force. Again, the definition of the conservative force and the conservative field. The work done in a closed path is zero, and this circle shows the integral is over the closed path. So when the work is done by a conservative force, we can say कि आपके पास उस conservative field में the work done in a closed loop is equals to zero. Or if we move from point A to B. मैम जी जी एक्सक्यूज मी मैम. जी जी हाँ जी बोले. मैम स्लाइड्स नहीं शो हो रही थी. The total work done in a closed path is zero, or we can say that the work done by the conservative force or the work done in a conservative field in moving the charge from point A to B is independent of the path taken. अगर आपके पास work is done between 2 points A and B, it is not the function of the path selected. It just depends upon the initial and the final conditions. So we can define electric potential energy, and electric potential energy is associated with these conservative forces, and this is a negative of the work done by the force as it acts from point A to B. अगर आपके पास एक electric force act करती है from point A to B, or we say that if a charge is moved from point A to B, or if the work is done in moving a charge from point A to B, the change in electric potential energy will be negative of the work done. And this delta UAB is basically the change in potential energy, और आप इसे कह सकते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी हम हमेशा डिफरेंस के फॉर्म में लेते हैं या किसी रेफरेंस से लेते हैं, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन. और पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव क्वांटिटी है, हम इससे डिफरेंस लेते हैं दो क्वांटिटीज़ का. सो नॉर्मली अगर हमने रेफरेंस के तौर पर कोई पॉइंट लेना हो, तो जैसे हम ग्राउंड लेते हैं, नॉर्मली हम उस पॉइंट को ये लेते हैं कि आपके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, ज़ीरो थी. आगे मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल भी बताती हूँ. So the change in potential energy is equals to negative of the work done from point A to B. और हम work done का फार्मूला अगर इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं, so change in potential energy is equals to minus integral A to B F dot dr. This will be used repeatedly. आपके पास हम इसको अभी भी बार बार यूज करेंगे इस इक्वेशन को. That change in potential energy is equals to negative of the work done, and this is equals to negative minus integral A to B F dot dr. So now the potential energy, how we can calculate the potential energy in a constant electric field. We have a uniform electric field, a point charge
a positive charge q is moved from point A to B, and this L shows the distance between the points A and B. Electric field is directed from this direction to this. So electric field की direction को हम ये कहते हैं कि electric field lines originates from the positive source and ends at the negative source. तो that means यहाँ right side पे आपके पास कोई positive source है और left पे क्या है, कोई negative source है. और आप एक पॉजिटिव चार्ज Q को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं फ्रॉम पॉइंट A टू B, एंड L इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B, जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, दैट इज L. अब अगर आपको याद हो, हमने इससे पहले जब पढ़ा था अ पॉइंट चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम किसी चार्ज को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो आपने ये देखा था कि एक पॉजिटिव चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एक नेगेटिव चार्ज जो है दैट मूव्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव सोर्स और एंड एट द नेगेटिव सोर्स. जो आपके पास नेचुरल टेंडेंसी क्या होगी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करे फ्रॉम द पॉजिटिव सोर्स टुवर्ड्स द नेगेटिव सोर्स. But here the positive charge has been moved from point A to B, which is against the electric field direction. So इसका मतलब है अगर आप उसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स वो उसके अगेंस्ट जो वर्क डन है, द वर्क डन अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, और हम कह सकते हैं कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो पॉजिटिव आएगा. इसकी कैलकुलेशन हम देखते हैं. ये देखिए, अब दिस इज डी एल को हमने एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के तौर पे शो किया है. ये दिस डी एल इज शोन एज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस डी एल को आपने एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के तौर पे शो किया ये, and this dl displacement vector shows that the direction of electric field is opposite to this displacement vector. आपके पास charge is moved against the electric field. So using the formula for change in potential energy will be equals to negative of the work done, and this negative of the work done will be equals to, अब F क्या है, F है electric force है on this charge which is moved from point A to B. When the charge is moved from point A to B, the electric force F will be equals to Q into E. F is equals to Q into E. So F is equals to Q into E. अगर आप यहाँ पर इस इक्वेशन में देख लो, डेल्टा U will be equals to माइनस इंटीग्रल Q E डॉट डी एल. अब E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड डी एल इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विच शोज कि आपके पास चार्ज की जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में हो रही है. वो चार्ज की डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने वेक्टर ड्रॉ किया. अब आप ये देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में अगर आप देखो टुवर्ड्स लेफ्ट है, और अगर हम ड्रॉ करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन तो वो ये है. अगर इफ आई शो द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विद द रेड वेक्टर, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने शो किया है और ये मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को शो किया है. सो अगर आप इन्हें इस तरह प्लेस करें तो यू सी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर एंटी पैरेलल, एंड एंटी पैरेलल मीन्स के इनके दरमियान कितना एंगल है, 180 डिग्रीज का एंगल है. सो इफ दे आर लाइंग एट द एंगल ऑफ 180 डिग्री, सो ई डॉट डी एल विल बी इक्वल्स टू माइनस ई डी एल, और डी एल आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के तौर पर शो किया है. सो अगर आप इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वाज इक्वल्स टू, एक्सक्यूज मी मैम. जी जी मैम इधर इंटीग्रल क्यों यूज किया हमने? इंटीग्रल हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि आपके पास टोटल वर्क डन विल बी इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल एफ डॉट डी आर है. अब डायरेक्टली एफ डॉट डी से अगर करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, माइनस एफ डॉट डी से. माइनस एफ डॉट डी में फिर आप डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, एल लेंगे, और आप क्यू ई उस तरह भी आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं अगर आप डायरेक्टली करना चाहें तो. बट नॉर्मली वो यूज़ द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन. यहाँ पर आपके पास क्योंकि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है
सो हम इंटीग्रेशन के बगैर भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट आपके पास एज अ जनरल केस हम इंटीग्रल को यूज़ करते हैं ताकि अगर आपके पास कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ना हो या पाथ यूनिफॉर्म ना हो, कोई आपके पास कर्व पाथ हो या कोई और ऐसा पाथ हो, इरेगुलर पाथ हो, तो फिर हम नॉर्मली इंटीग्रल यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर भी मैं उसे इंटीग्रल के मेथड से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ई डॉट डी एल की बजाय आप सिर्फ ई डॉट एल भी लिख सकते हो, पर यहाँ पर एल की डायरेक्शन को फिर हम किससे शो कर रहे हैं, डी एल से। आप डायरेक्टली भी करना चाहो तो कर सकते हो। सो ई डॉट डी एल में आप क्या आएगा, माइनस ई डी एल आएगा, क्योंकि आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो 180 डिग्री का एंगल है, cos 180 किसके इक्वल होगा, -1 के। सो ई डॉट डी एल विल बी इक्वल्स टू माइनस ई डी एल। अगर आप यहाँ पुट करो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल क्यू ई डॉट डी एल। सो माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, क्यू इंटीग्रल डी एल, और आपके पास दिस डी एल इज इंटीग्रेटेड फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पर आपके पास बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ था, इसलिए आप अगर इधर इंटीग्रेशन ना भी यूज़ करते जैसे आपने पूछा तो आप सॉल्व कर सकते थे, बट इन जनरल हम इंटीग्रल का ही मेथड यूज़ करते हैं अगर आपके पास कोई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो या कोई नॉन यूनिफॉर्म पाथ हो, कोई नॉन लीनियर पाथ हो। सो ए से बी में जब आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इंटीग्रेट करेंगे, सो दिस विल बी एल। सो आपके पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू क्यू ई एल, क्योंकि वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। so that work done against the electric field is stored in the form of potential energy, so change in potential energy is positive। तो आपके पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ये पॉजिटिव आया है। अगर यहाँ पर लेट्स सपोज यहाँ पर अगर आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज होता और वो ए से बी में मूव करता, सो आपके पास उसके लिए आप देखना कि क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। मैंने ये सारा केस तो आपको पॉजिटिव चार्ज के लिए करवा दिया, लेकिन वैसे जस्ट फॉर प्रैक्टिस और होमवर्क यू कैन रिपीट दिस प्रॉब्लम फॉर द नेगेटिव चार्ज, फॉर अ नेगेटिव चार्ज। आप इसे अपने पास नोट कर लो कि आपने इसको नेगेटिव चार्ज के लिए भी करके देखना है कि अगर यही सारा केस हो बट प्लस क्यू चार्ज इज रिप्लेस्ड बाय माइनस क्यू। अच्छा जी, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक सिंगल चार्ज की। इफ़ वी हैव अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो मैंने अभी बात की थी ना कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हम रेफरेंस से लेते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं। यहाँ पर अभी वो बात भी देखते हैं। देखो अगर आपके पास सबसे पहला केस है, फर्स्ट केस है, इफ़ वी हैव ओनली अ सिंगल चार्ज, वी हैव अ चार्ज 1। अब आपके पास कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन्स कोई इंटरेक्शन नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन। आपके पास बेसिकली when there are more than one charges they interact and their force of interaction leads to the potential energy। आपके पास कोई सिंगल चार्ज है, उसकी कोई इंटरेक्शन नहीं है, सो आपके पास यहाँ पर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। हम आगे एक टेबल भी बना के देखेंगे। आपके पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ये एक इंटरेक्शन का इफेक्ट है, और जबकि आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे वो सिंगल चार्ज का भी इफेक्ट हो सकते हैं। आपके पास एक सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, बट अ सिंगल चार्ज कैन नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स, बिकॉज आपके पास कोई दूसरा चार्ज नहीं है जिस पर फोर्स एक्सर्ट करे। फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी आर द इफेक्ट ऑफ सब इंटरेक्शन। सो यहाँ पर इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, जीरो आएगी। अगर आप किसी इनफाइनाइट सेपरेशन से, अब सेकंड केस में, ये आपके पास फर्स्ट केस है, सेकंड केस में इफ वी ब्रिंग अ चार्ज q2 फ्रॉम एन इनफाइनाइट सेपरेशन एट फ्रॉम एन इनफाइनाइट सेपरेशन टू डिस्टेंस r12। आपके पास, आप सपोज करते हैं कि चार्ज 2 पहले किसी इनफाइनाइट सेपरेशन पे था। जब वो किसी इनफाइनाइट सेपरेशन पे था तो चार्ज 1 और 2 के दरमियान जो इंटरेक्शन थी वो ज़ीरो थी। सो आप कह सकते हैं कि जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी दैट वाज ज़ीरो, एंड व्हेन इट रीचेस दिस पॉइंट, तो आपके पास जब एक फाइनाइट सेपरेशन पे आ जाता है तो ये चार्ज 1 और 2 इंटरेक्ट करेंगे एंड द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीज टू विल बी इक्वल्स टू यू विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 ओवर r12। और ये मैंने किस फार्मूले से लिखा है, या आपने इस फार्मूले से लिखा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस एफ डॉट डी आर। अगर आप इससे पुट करके देखो तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी यही आएगी, आप करके बेशक देख भी लेना। सो आपके पास चेंज इन, आगे मैं बल्कि एंड पे आपको एक क्वेश्चन दूंगी उसमें आप ये करेंगे भी। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बजाय हम जब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो
वो सपोज कि इनिशियली आपके पास जो चार्ज 2 था वो इनफाइनाइट सेपरेशन पे था, उसके अंदर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 0 थी. So at this point the potential energy is equals to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 over r12. So now in third case if we take a third charge q3 और उसे हम यहाँ पर लेकर आते हैं, तो अब आपके पास ये तीनों चार्ज इंटरेक्ट करेंगे. अब आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसमें 3 टर्म्स आएंगी. एक 1 और 2 की इंटरेक्शन की वजह से, एक 2 और 3 की इंटरेक्शन की वजह से, और एक 3 और 4 के इंटरेक्शन की वजह से. So the total potential energy of the system is equals to this. पैकेज आया प्रिंसिपल ऑफिस आया था, मैं जाके ले कैश डिलीवरी करी. So आप इसे अब इसमें मैंने साइंस की कोई बात नहीं की, क्योंकि वैसे भी पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी. अब देखो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 0 थी. अगर आप चार्ज 2 को लेकर आते हैं, अब इन दोनों का अगर आप साइन इंक्लूड करते हैं, लेट्स सपोज दीज 2 चार्जेस आर ऑपोजिट चार्जेस, सो ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी. अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, जो ये शो करेगा कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई है. क्यों? क्योंकि इनिशियली अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, दोनों चार्जेस किसी इनफाइनाइट सेपरेशन पे थे, दोनों के दरमियान कोई इंटरेक्शन नहीं थी, पोटेंशियल एनर्जी 0 थी. आप एक चार्ज को उसके करीब ले आए हैं, तो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है. सो आपके पास अट्रैक्शन है, एक नेचुरल प्रोसेस है कि दोनों चार्जेस के दरमियान सेपरेशन कम हो गई है. सो अब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी. बट अगर आपके पास दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी. दैट मीन्स इनिशियली जब दोनों सेपरेशन पे थे पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, लेकिन टू ब्रिंग 2 लाइक चार्जेस क्लोज, आपने 2 लाइक चार्जेस को क्लोज लाया है, सो उसके लिए आपको उनकी रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ा है. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है. और अगर 3 चार्जेस हो गए हैं तो यहाँ पर भी आपके पास साइन है. अगर तीनों चार्जेस पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी, तीनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगी, पोटेंशियल एनर्जी जाहिर रिपल्शन होगी. अगर कोई चार्जेस पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है तो हो सकता है कोई टर्म पॉजिटिव आए कोई नेगेटिव आए. नेट पर हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है. तो आप इसे देख लें. इससे ना आपका एंड पे एक होमवर्क है ये वाला. A charge q1 is at the origin, charge 2 is at some distance. ठीक है, इनिशियली आपके पास चार्ज 1 और 2 के दरमियान a डिस्टेंस है, ये r a डिस्टेंस है, a पोजीशन पे था चार्ज 2. अब दोनों पॉजिटिव चार्ज है, सो q1 and q2 will interact. q1 will exert some repulsive force on charge 2 and charge 2 will move away from charge 1. When charge 2 will move away from charge 1, then if the initial distance was RA and the final distance was RB, so what will be the change in potential energy? The change in potential energy will be equals to delta UB minus WAB F dot dr. और अगर R आप कोई डिस्टेंस लेते हैं, जनरल डिस्टेंस कोई वेरिएबल लेते हैं, उसको आप इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम पॉइंट A टू B, सो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की ये वैल्यू आनी चाहिए, ये आपने प्रूफ करनी है. और बी में क्या है, इस डायग्राम में अगर आपके पास चार्ज 1 और 2 है और 2 जो है वो किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, पहले वो ए पॉइंट पे था अब वो बी पॉइंट पे आ गया. अब आपके पास दोनों चार्जेस के दरमियान ये डिस्टेंस क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है. सो आपके पास दैट मीन्स एक सर्कुलर मोशन हो रही है. सो आपके पास यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, 0 आएगा. इसीलिए शायद आपने पढ़ा भी हो कि सर्कुलर मोशन में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, 0 होता है. ठीक है, सो ये आपका यहाँ तक का काम है.